हाँ जी स्टूडेंट्स, स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ। ਦੇਖੋ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਫੇਅਰਿੰਗ ਵੇਵਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਪੈਟਰਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਵਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਵੇਵ ਲਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਏ ਸਾਈਨ ਓਮੇਗਾ ਟੀ, ਏ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਵੇਵ ਲਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਬੀ ਸਾਈਨ ਓਮੇਗਾ ਟੀ ਪਲੱਸ ਫਾਈ, ਬੀ ਦੂਸਰੀ ਵੇਵ ਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਫੇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਟੂ ਵੇਵਸ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਰਿਜ਼ਲਟਿੰਗ ਵੇਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ ਏ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ ਬੀ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ 2ab ਕੋਸ ਫਾਈ। ਅਤੇ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟਿੰਗ ਵੇਵ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਈ ਸੀਗੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਫਸਟ ਪਲੱਸ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਸੈਕਿੰਡ ਪਲੱਸ 2 ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਫਸਟ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਸੈਕਿੰਡ ਅਤੇ ਕੋਸ ਫਾਈ। ਇਹ ਇੰਟਰਫੇਅਰਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਸੀਗਾ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਫੇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਅਤੇ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਵੇਵਸ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੇਵ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਹ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਵੇਵ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੰਪਲੀਟ ਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਲੈਮਡਾ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ 180 ਡਿਗਰੀ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਪਾਈ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ 2 ਪਾਈ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਫੇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ 2 ਪਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਫੇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ 2 ਪਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲੈਮਡਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫੇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ 1 ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਉਦੋਂ ਲੈਮਡਾ ਓਵਰ 2 ਪਾਈ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਫੇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਪਾਂ 5 ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਲੈਮਡਾ ਓਵਰ 2 ਪਾਈ ਇੰਟੂ 5, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਡੈਲਟਾ ਐਕਸ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਡੈਲਟਾ ਐਕਸ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਲੈਮਡਾ ਓਵਰ 2 ਪਾਈ ਇੰਟੂ ਫੇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਜਦੋਂ ਫੇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ 2 ਪਾਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈਮਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫੇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਪਾਂ 1 ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈਮਡਾ ਬਾਈ 2 ਪਾਈ। ਜੇ 5 ਦਾ ਫੇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਂਡਮਲੀ ਆਪਾਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ 5, ਤਾਂ 5 ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਇੱਧਰ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੈਲਟਾ ਐਕਸ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਡੈਲਟਾ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੈਮਡਾ ਓਵਰ 2 ਪਾਈ ਇੰਟੂ 5 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ 5 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਉੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓ 2 ਪਾਈ ਓਵਰ ਲੈਮਡਾ ਇੰਟੂ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਆਹ ਫੇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਆਹ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਫੇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਅਤੇ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਆਪਾਂ ਦੇਖੇ ਸੀਗੇ, ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਅਤੇ ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ। ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਈਟਨੈਸ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਰਕਨੈਸ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇਖਣੀਆਂ ਨੇ ਫੋਰ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫੋਰ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ। ਸੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫੋਰ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਪੈਟਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਨਾ, ਫੇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਮਤਲਬ ਵੇਵ ਲੈਂਥ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਅਤੇ ਆਹ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਉਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟਿੰਗ ਵੇਵ ਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਅਤੇ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਆਹ ਫੈਕਟਰ ਨਾ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ, ਨਾ ਆਹ ਫੈਕਟਰ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ, ਸਿਰਫ ਆਹ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਸ ਫਾਈ। ਸੋ ਕੋਸ ਫਾਈ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ 1 ਹੈ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੋ ਜਾਏ ਮੈਕਸਿਮਮ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵੇਵ ਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆਏਗਾ।
ਸੋ ਫੋਰ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਇੰਟਰਫੇरेंस cos फाई ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਕਸਿਮਮ ਮੀਨਸ 1 ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ cos फाई ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਏਗੀ ਉਦੋਂ फाई ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 0 डिग्री, ठीक है, 0, 2 पाई, ठीक है, 4 पाई, प्लस माइनस दोनों ਇਹਦੇ ਆਣਗੇ, ठीक है ना। सो प्लस माइनस, सो ਇੱਥੇ देखो ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ फेस डिफरेंस है वो इस तरह का होएगा, फेस डिफरेंस इज इक्वल टू प्लस माइनस m इंटू 2 पाई, ठीक है। 2 पाई का इंटैगरल मल्टीपल आप कह सकते हैं, m की वैल्यू 0, 1, 2, ठीक है ना। m जो वो आ वैल्यूज लै सकता है, 0 m 0 करा 0 आ जाएगी, m 1 करा 2 पाई आ जाएगी, m 2 करा 4 पाई आ जाएगी, ठीक है ना। प्लस माइनस नाल इहदे चलता है, सो आ प्लस माइनस साइन इत्थे आपां डाल सकते हैं, ठीक है। सो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लई जिहड़ा फेस डिफरेंस है दैट शुड बी इंटैगरल मल्टीपल ऑफ 2 पाई, ठीक है। सो m इज एन इंटीजर, ठीक है। सो इंटैगरल मल्टीपल ऑफ 2 पाई अपना फेस डिफरेंस जिहड़ा आना चाहिए है। हुण आपां गल करांगे पाथ डिफरेंस की। हुण देखो पाथ डिफरेंस इत्थे डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी बनती है, वो आ जाएगी लैम्डा ओवर 2 पाई इंटू फेस डिफरेंस। सो फेस डिफरेंस आप जिथे पुट करिए प्लस माइनस m इंटू 2 पाई, ठीक है। हुण देखो 2 पाई कैंसल हो जाएगा तो अपने को जिहड़ा पाथ डिफरेंस की आ जाएगा प्लस माइनस m इंटू लैम्डा। m इंटू लैम्डा मतलब लैम्डा अपने को वेवलेंथ है, सो इंटैगरल मल्टीपल ऑफ अ वेवलेंथ, ठीक है। सो m मतलब 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, ठीक है ना। सो इस तरह एक पूरी वेवलेंथ का डिफरेंस होवे जो सुपर इंपोजिंग वेव्स दे विच जिहड़ियां दो वेव सुपर इंपोज कर रही ने उन्हां जे पाथ डिफरेंस जिहड़ा है वो पूरी पूरी वेव के बराबर है, एक वेव, 2 वेव, 3 वेव, ठीक है ना। मतलब इंटैगरल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस उदों होंदा है, ठीक है। फर्दर देखो अपन इंटेंसिटी बारे आप गल की सी, रिजल्टिंग वेव की इंटेंसिटी जी आ गई है, फिर इनू आप इस तरह भी लिख सकते हैं ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab कोस फाई, ठीक है। सो कोस फाई की वैल्यू 1 जो आ गई, सो मैक्सिमम इंटेंसिटी जी है आई मैक्सिमम कदों आएगी जो ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab कोस फाई 1 हो गया, ठीक है। हुण ये देखो ये क्यों लिखा, आप लास्ट टाइम जो लैक्चर च देखा सीगा कि जिहड़ा एंपलीट्यूड है, एंपलीट्यूड का स्केयर जिहड़ा इन प्रपोर्शनल टू इंटेंसिटी होंदा है, ठीक है ना। सो आ चीज़ आप देखी सीगी, सो इस करके आप ये चीज़ लिखी है, ठीक है। सो एंपलीट्यूड जिहड़ा इंटेंसिटी है वो एंपलीट्यूड के स्केयर के बराबर आप लिख सकते हैं। सो के फैक्टर सीगा, उत्थे के फैक्टर दोनों पासे कटिया जाएगा, तो इत्थे ए स्केयर, इत्थे बी स्केयर, इत्थे 2 ए भी क्योंकि स्केयर रूट च है तो ए भी आ गया, ठीक है। तो कोस फाई की वैल्यू 1 होगी क्योंकि मैक्सिमम है। सो मैक्सिमम इंटेंसिटी अपनी कितनी आ गई, देखो इनू आप ए प्लस बी का होल स्केयर लिख सकते हैं, ठीक है। सो मैक्सिमम इंटेंसिटी जी है वो ये आ गई, ठीक है। फर्दर तुसी देखो कि आपां नूं पता है कि जो आप ए की वैल्यू लिखांगे वो स्केयर रूट आ चीज़ हो जाएगी, ठीक है ना। स्केयर रूट ए आई आ जाएगा। सो आप आई मैक्सिमम इज इक्वल टू, हुण इत्थे देखिए तो इत्थे आप एवें लिख सकते हैं आई ए प्लस आई बी प्लस 2 स्केयर रूट आई ए आई बी, ठीक है। सो इनू आप एवें लिख सकते हैं, देखो स्केयर रूट आई ए प्लस स्केयर रूट आई बी इनका स्केयर। सो इनू तुसीं जो खोलोगे आ चीज़ बन जाएगी, देखो इनका स्केयर करांगे आ बन गया, इनका स्केयर करांगे प्लस 2 दिस इंटू दिस, ठीक है। सो आ चीज़ जी है वो आही है, आ एंपलीट्यूड का स्केयर रूट ऑफ इंटेंसिटी है, ठीक है। सो इस तरह मैक्सिमम जी इंटेंसिटी जी है वो एवें भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो इंटेंसिटी बारे भी आप गल करनी तो एंपलीट्यूड बारे भी आप गल करनी, ठीक है।
ਸੋ ਫੇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੇ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਕਿ ਫੇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 2π ਦਾ ਇੰਟੈਗਰਲ ਮਲਟੀਪਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਲੈਮਡਾ ਦਾ ਇੰਟੈਗਰਲ ਮਲਟੀਪਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਲਈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ a+b ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ a² + b² + 2ab cos φ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ cos φ 1 ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਦੋਂ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੈ ਉਦੋਂ cos φ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੋ ਜਾਏਗੀ, a² + b² + 2ab। ਸੋ ਇਹ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, r = a + b ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਉਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ। ਸੋ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸੋ a + b ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ a + b ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆ ਗਈ ਮੈਕਸਿਮਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ± ਇੰਟੈਗਰਲ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫ 2π ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ± ਇੰਟੈਗਰਲ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫ ਲੈਮਡਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਲਈ। ਸੋ 4 ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ, ਫੇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੇ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਲਈ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਲਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਮਿਨੀਮਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਮਿਨੀਮਮ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ, ਦੇਖੋ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਮਿਨੀਮਮ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ cos φ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮਿਨੀਮਮ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ cos φ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, -1, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ cos θ ਲਾਈਜ਼ ਬਿਟਵੀਨ -1 ਐਂਡ +1, +1 ਉਹਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, -1 ਉਹਦੀ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ cos φ ਮਿਨੀਮਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ cos φ ਮਿਨੀਮਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ φ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, φ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹੜੀ ਲਏਗਾ, ਦੇਖੋ -1 ਕਦੋਂ ਲੈਂਦਾ ਵੈਲਿਊ, ਜਦੋਂ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਈ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਪਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 360 ਜੋੜਦੇ ਜਾਈਏ, 3π 5π, ਠੀਕ ਹੈ, +- ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ φ ਦੀ ਵੈਲਿਊ +- ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ 2m + 1π, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ 2m + 1π ਕਿਵੇਂ, ਤੁਸੀਂ m ਨੂੰ 0 ਕਰੋਗੇ, m ਇੰਟੀਜਰ ਹੈਗਾ, m 0 ਕਰੋ, 1 ਕਰੋ, 2 ਕਰੋ, 3 ਕਰੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਆ ਵੇਲੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਫੇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਓਡ ਇੰਟੈਗਰਲ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫ π, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਓਡ ਇੰਟੈਗਰਲ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫ π ਹੋ ਗਿਆ। ਓਡ ਇੰਟੈਗਰਲ ਮਲਟੀਪਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 1π, m ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਕਰੋਗੇ 3π ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 2 ਕਰੋਗੇ 5π ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 0 ਕਰੋਗੇ 1π ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਓਡ ਇੰਟੈਗਰਲ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫ π ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ φ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ +-2 ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਲਿਖੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, m + 1/2 2π। ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2 ਅੰਦਰ ਲਿਖੋਗੇ ਵਾਪਸ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਓਡ ਇੰਟੈਗਰਲ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫ π ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆ π ਦਾ ਓਡ ਇੰਟੈਗਰਲ ਮਲਟੀਪਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੈਰਿਟੀ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਓਡ ਇੰਟੈਗਰਲ ਮਲਟੀਪਲ, ਇਹ ਓਡ ਨੰਬਰ ਬਣੇਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। m ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਲਓ, 0 1 2 3, +1 ਜਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ 2 ਟਾਈਮਸ ਕਰਕੇ +1 ਜਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਓਡ ਨੰਬਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ 0 ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਣੇਗੀ, 1 ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਣੇਗੀ, ਇੱਥੇ m ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਣੇਗੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਓਡ ਇੰਟੈਗਰਲ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫ π ਫੇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਹੁਣ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੇਖੋ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਫੇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ π ਹੈ, ਜਦੋਂ 2 ਆਪਾਂ ਲੈਮਡਾ ਫਿਰ
पाथ डिफरेंस आया तो फेस डिफरेंस 2 पाई है, जो 1 आया तो अपने को 2 पाई बाय लैम्डा हो गया। ठीक है, सो 2 पाई बाय लैम्डा अपने को ये आ गया फेस डिफरेंस। ठीक है, तो जे डेल्टा एक्स आया तो 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, ये फेस डिफरेंस आ गया। ठीक है, सो फेस डिफरेंस की वैल्यू अपने को सी फाई, सो फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा एक्स है, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू की बन जाएगी, डेल्टा एक्स अपने को आ गया लैम्डा ओवर 2 पाई इंटू फाई। ठीक है, सो लैम्डा ओवर 2 पाई इंटू फाई, फाई की वैल्यू इतने पुट कर दी है, सो फाई की वैल्यू की है प्लस माइनस आ पुट करते हैं आप। ठीक है, 2m प्लस 1 इंटू पाई। ठीक है, आ वैल्यू देखो आ गई, या आ वाली वैल्यू पुट कर दो, 2 पाई कैंसल हो जाएगा। ठीक है ना, जिमें मर्जी तुम कर सकते जे। इतने देखो अपने कोल पाई कैंसल हो गया, चलो ठीक है, पाई कैंसल हो गया तो अपने को आ वैल्यू बन गई 2m प्लस 1 प्लस माइनस ते अपने को पाई कैंसल हो गया तो लैम्डा बाय 2 आ गया। ठीक है, सो इनू आप कह सकते लैम्डा बाय 2 का ओड इंटैग्रल मल्टीपल। ठीक है, सो लैम्डा बाय 2 का ओड इंटैग्रल मल्टीपल, एम की वैल्यू 0 करोगे तो देखो की बनता है, एम की वैल्यू 0 करो, ये बन गया लैम्डा बाय 2, मतलब पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2, एम की वैल्यू 1 करो तो ये बन गया 3 लैम्डा बाय 2। सो अपने को किस तरह का पाथ डिफरेंस आएगा, देखो लैम्डा बाय 2, ठीक है, प्लस माइनस के नाल 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2। ठीक है, इस तरह, सो ओड इंटैग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। ठीक है, सो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लई जिहड़ा फेस डिफरेंस है वो ओड इंटैग्रल मल्टीपल ऑफ पाई चाहिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लई इंटैग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई सीगा। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लई ओड इंटैग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है। ठीक है, मतलब इत्थे 0 2 पाई 4 पाई सी, इत्थे 1 पाई 3 पाई 5 पाई है। ठीक है, उन्होंने विचकार जिहड़ा, सो उस तरह इत्थे जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस सीगा उदों अपने को पाथ डिफरेंस आ रहा सीगा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, इत्थे की आ रहा है हाफ लैम्डा, 1.5 लैम्डा, 3 बाय 2 लैम्डा। ठीक है ना, 2.5 लैम्डा, 5 बाय 2 लैम्डा, इस तरह पाथ डिफरेंस अपने को आ रहा। सो एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लिए। सो फर्दर देखो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लिए अपने को कोस फाई की वैल्यू -1, सो कोस फाई की वैल्यू देखो -1 आप पुट करिए तो अपने को जी एंपलीट्यूड कितना बनता, देखो इतने -1 पुट करिए। ठीक है, इतने -1 पुट करा, आ नैगेटिव हो जाएगा, कोस फाई की वैल्यू -1 पुट कर दिए तो ये माइनस हो गया। ठीक है, माइनस, सो इतने नैगेटिव साइन आ जाएगा, इतने नैगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, सो ये जी वैल्यू है अपने को बन गई a माइनस बी का होल स्केयर। सो एंपलीट्यूड अपने को आ बन गया a माइनस बी। सो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लिए नैगेटिव साइन आ गया a माइनस बी आर इज इक्वल टू। ठीक है, उस तरह इंटेंसिटी देखो, इंटेंसिटी देखो इतने कोस फाई -1 हो जाएगा, ये -1 हो गया तो आ नैगेटिव आ जाएगा, इतने ये नैगेटिव आ गया। ठीक है, आ नैगेटिव आ गया अपने को, देखो कोस फाई -1 हो गया। ठीक है, सो ये नैगेटिव आ गया, इतने मिनिमम हो जाएगी। ठीक है, इतने मिनिमम हो जाएगी, मिनिमम इंटेंसिटी आ जाएगी। सो इतने मैक्सिमम था तो मिनिमम इंटेंसिटी अपने को आ जाएगी, इतने माइनस आ गया। ठीक है, सो अपने को आ चीज़ बन जाएगी, हम देखो। ठीक है, a माइनस बी का होल स्केयर, उत्थे a प्लस बी का होल स्केयर सी, जो मैक्सिमम वैल्यू आई, जो मिनिमम वैल्यू आएगी कोस फाई की वैल्यू -1 पुट करनी है तो आ वैल्यू फैक्टर नैगेटिव हो जाएगा, तो a माइनस बी का होल स्केयर। ठीक है, सो आ वैल्यू भी इतने भी देखो आ नैगेटिव हो गया तो आ वैल्यू मिनिमम हो जाएगी। मिनिमम इंटेंसिटी जी है वो आई ए माइनस आई बी स्केयर रूट्स का स्केयर रूट आई ए माइनस स्केयर रूट आई बी होल स्केयर, सो विद नैगेटिव साइन। ठीक है, एंपलीट्यूड भी नैगेटिव आ गया, विच इंटेंसिटी भी नैगेटिव साइन आ गया, तो फेस डिफरेंस जोड़ा है ओड इंटैग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है, तो पाथ डिफरेंस
ओड इंटैग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाय लैम्डा बाय 2 है, ठीक है। ओड इंटैग्रल मल्टीपल लैम्डा मतलब हाफ लैम्डा, 3/2 लैम्डा, 5/2 लैम्डा, इस तरह, ठीक है। सो लैम्डा तो कंस्ट्रक्टिव तो हाफ लैम्डा तो डिस्ट्रक्टिव, फिर 3/2 मतलब 1.5 लैम्डा तो फिर डिस्ट्रक्टिव, इन बिटवीन लैम्डा आएगा दोनों के, फिर 2 लैम्डा कंस्ट्रक्टिव, फिर पाथ डिफरेंस जोड़ा वो 2.5 लैम्डा 5/2 आ गया, उत्थे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फिर 3 लैम्डा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इस तरह डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव चलता जाएगा, ठीक है। सो इंटरफेरेंस पैटर्न एवं आपां नूं मिलता जाएगा। देखो रेशो ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी टू द मिनिमम इंटेंसिटी फिर की हो जाएगी, आई मैक्सिमम ओवर आई मिनिमम, लेकिन आ जाएगा। सो मैक्सिमम इंटेंसिटी की सी A+B का होल स्केयर तो मिनिमम इंटेंसिटी A- B का होल स्केयर, ठीक है। सो इस तरह आप लिख सकते हैं। फिर जो आप इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी लिखना हो तो आप इस तरह लिख सकते हैं, स्केयर रूट IA प्लस स्केयर रूट IB इनका स्केयर डिवाइड बाय स्केयर रूट I इतने A है, IA माइनस स्केयर रूट IB इन द स्केयर, ठीक है। So this is the ratio of maximum intensity over minimum intensity, ठीक है। तो आप इस तरह लिख सकते हैं। फर्दर देखो जे एम्पलीट्यूड दोनों वेव्स दे इक्वल ने, ठीक है ना, इफ A इक्वल टू B, A ते B बराबर होण ते इनू आपां फिर की होएगा देखो, फिर आपां हुण देखिया कि मैक्सिमम जिहड़ा एम्पलीट्यूड आया आर मैक्स इंटेंसिटी मैक्सिमम की आप गल करते हैं आप। सो मैक्सिमम इंटेंसिटी जी है वो कितनी आएगी, देखो इनू आप I0 मान लीए, ठीक है। मैक्सिमम इंटेंसिटी जी है वो आप इस तरह देखा। सो देखो जो A तो B बराबर ने तो अपने कोल ये हो जाएगा, मान लो उनका एम्पलीट्यूड आप A0 ले लें, ठीक है, A0 ले लिया, ठीक है। सो उस केस दे विच जिहड़ा एम्पलीट्यूड जिहड़ा हो जाएगा वो हो जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है ना, क्योंकि A+B आना है। A+B की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2A0, ठीक है। तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी इतने A0 प्लस A0 स्केयर, ये हो गया 2 टाइम्स A0 का स्केयर, ये हो जाएगा 4 टाइम्स A0 स्केयर, ठीक है ना। इंटेंसिटी जी है वो 4 टाइम हो जाएगी एम्पलीट्यूड के, ठीक है, ठीक है। एम्पलीट्यूड स्केयर, सो इनू एम्पलीट्यूड स्केयर जिहड़ा है इनू आप I0 लिख देंगे। I0 की है इंटेंसिटी ऑफ द ईदर वेव, क्योंकि हम आप जो एम्पलीट्यूड बराबर है तो इंटेंसिटी भी बराबर होएगी। सो अपने को I मैक्सिमम जी है उनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 टाइम्स द इंटेंसिटी ऑफ द ईदर वेव, ठीक है। सो मैक्सिमम इंटेंसिटी जी 4 गुना हो जाएगी अपने को, ठीक है। हम मिनिमम इंटेंसिटी की गल करिए, हम देखो जोड़ा वो मिनिमम एम्पलीट्यूड जोड़ा है आर मिनिमम जोड़ा है उनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी A-B सीगा। सो इनू सेम वैल्यू तो सेम वैल्यू माइनस होगी, ये 0 हो जाएगा। सो मिनिमम एम्पलीट्यूड भी 0 हो गया, ठीक है। तो मिनिमम इंटेंसिटी की गल करिए तो आप उनकी वैल्यू A-B का होल स्केयर सी वो भी 0 हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि A तो B बराबर ने तो अपने कोल जी मिनिमम इंटेंसिटी भी 0 तो मिनिमम एम्पलीट्यूड भी 0, ठीक है। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी जी 4 टाइम्स द इंटेंसिटी होता इधर वेव तो एम्पलीट्यूड जो ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है। सो ट्वाइस होता इधर वेव अपने को ये वैल्यू जी है वो अपने को आ जाएगी, ठीक है। हाँ जी, फर्दर देखो हम आप लिखा है IR इज इक्वल टू IA प्लस IB प्लस 2 टाइम्स स्केयर रूट IA IB नाल इहदे कोस फाई आ गया सीगा, ठीक है। हुण देखो जो
इंटेंसिटी बराबर है, एम्पलीट्यूड बराबर है, इंटेंसिटी बराबर है, उस केस च आप लिखा देखो आई आर इज इक्वल टू आई नोट लिख दो इनू, ठीक है, प्लस आई नोट प्लस 2 टाइम्स आई नोट स्केयर हो जाएगा, नाल आ जाएगा कोस फाई, ठीक है। सो ये बन गया अपने कोल 2 आई नोट प्लस 2 आई नोट कोस फाई, ठीक है। सो 2 आई नोट ते 2 आई नोट कोस फाई, हम 2 आई नोट इहदे चों कॉमन निकल गया, 2 आई नोट इत्थे आ गया 1 प्लस कोस फाई, ठीक है। सो 1 प्लस कोस फाई जिहड़ा ना उन्होंने 2 कोस स्केयर फाई बाय 2 ये फार्मूला है, ठीक है। सो ये बन जाएगा 2 आई नोट तो ये बन गया 2 कोस स्केयर फाई बाय 2, ठीक है। सो ये बन गया 4 आई नोट कोस स्केयर फाई बाय 2। सो आई आर की वैल्यू जी है वो वैल्यू बन गई 4 आई नोट कोस स्केयर फाई बाय 2। ਹੁਣ देखो ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਜਦੋਂ ਟੇਕਸ ਪਲੇਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੋ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਇੰਟੈਗਰਲ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫ 2 ਪਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ आई आर की वैल्यू कितनी बन जाती, देखो 4 आई नोट कोस स्केयर फाई की वैल्यू आप पुट करिए एम इंटू 2 पाई, सो एम इंटू 2 पाई आप पुट करिए डिवाइड बाय 2 है तो ये अपने कोल एम की वैल्यू आप 1 पुट कर दी अपने वालों, ठीक है। सो एम की वैल्यू 1 पुट कर दो, चलो एम की अपने को 0 1 2 3 इस तरह वैल्यूज ने, एम 0 पुट करांगे तो कोस 0 1 हो जाएगा, ठीक है। तो एम 1 पुट करांगे तो अपने कोल इत्थे देखो ये वैल्यू अपने को आ गई, ठीक है। देखो एम आप वैल्यू जी है इत्थे एम की वैल्यू है, ठीक है ना, एम इक्वल टू 0 1 2, ठीक है। ये कुछ भी पुट कर सकते हैं आप। ਹੁਣ देखो स्केयर है जो एम 0 है कोस 0 1 होंगे उसका स्केयर भी 1 हो जाएगा। सो ये वैल्यू ये फैक्टर जोड़ा है इन्हें 1 वैल्यू ले ली, जो आप 1 पुट करा देखो एम की वैल्यू तो अपने कोल ये 1 2 2 कैंसल हो जाएगा, पाई आ गया, कोस पाई की वैल्यू -1 होंगी है पर स्केयर जो करा वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। सो आ फैक्टर हमेशा 1 वैल्यू लेगा, भावें जी वैल्यू मर्जी पुट करते रहो एम की, 0 करोगे ये पॉजिटिव वैल्यू ले लेगा, 1 या मतलब ओड वैल्यू पुट करोगे 1 3 ये -1 का स्केयर फिर पॉजिटिव हो जाएगा। सो इनका मतलब है कि इनकी वैल्यू जी है वो हमेशा 4 टाइम्स द इंटेंसिटी ऑफ ईदर वेव रहनी है, ठीक है। हुण तुसी जो ये हो गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लिए, ठीक है। हुण डिस्ट्रक्टिव लिए आप गल करांगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लिए आपको पता है कि फाई की वैल्यू जी है वो ओड इंटैगरल मल्टीपल ऑफ जोड़ा वो पाई है, ठीक है ना, ओड इंटैगरल मल्टीपल ऑफ पाई है। ये आप पुट करिए इत्थे देखो ये इत्थे पुट करिए तो अपने कोल रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी कितनी बनती है, देखो 4 आई नोट कोस स्केयर फाई की वैल्यू आप पुट करांगे 2 एम प्लस 1 पाई बाय 2 है, ठीक है ना, आ 2 फैक्टर है वो बाय 2 है। हुण देखो तुसी एम 0 पुट करो, आप कला फैक्टर देखना है, ठीक है। ये फैक्टर आप देखना कितनी वैल्यू लेंदा है, 0 पुट करिए एम की वैल्यू आ 0 हो गया, ये बन गया पाई बाय 2, कोस पाई बाय 2 0 होंदा है, 0 का स्केयर 0, ठीक है। इनकी वैल्यू आप पुट करिए 1 1 इंटू 2 2 प्लस 1 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 का मतलब हो गया देखो 3 इंटू 180 बाय 2 90 270 आ गया। सो कोस 270 भी 0 होंगे, ठीक है। सो इनके ते कोई वैल्यू पुट करी चलो, सो वैल्यू 0 आएगी, मतलब 90 आएगी या 270
290 ਜਾਂ 270 इस तरह का मल्टीपल आई जाएगा। सो ये वैल्यू हमेशा 0 रहेगी, ठीक है ना। सो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लिए आप जो कंडीशन पुट की तो हमेशा अपने को इंटेंसिटी जी है वो 0 आ रही है। सो रिजल्टेंट इंटेंसिटी हमेशा 0 आ रही है। तो जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लिए आप हमेशा रिजल्टेंट इंटेंसिटी 4 टाइम्स का इंटेंसिटी ऑफ द ईथर वेव अपने को आ रही है, ठीक है। देखो डायमेट्रिकली डायग्राम देखो दी डायग्राम के देखो तुसी जिथे अपने को आ मान लो 0 है, ठीक है, इत्थे फेस 0 है। सो इनदे देखो जो पाई आ जाता है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आ रहा है, फिर 2 पाई। सो इंटैग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई जो आ रहा है उदों आ ब्राइटनैस है, आ ब्राइटनैस है, देखो 2 पाई के उत्ते ब्राइटनैस है, आ हाई इंटेंसिटी आ गई 4 टाइम्स द इंटेंसिटी ऑफ द ईदर वेव आ जी आ गई अपने को 4 आई नोट आ गई, आ देखो, ठीक है। सो 3 पाई तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डार्कनैस आ गई, ठीक है, इत्थे भी 3 पाई तो डिस्ट्रक्टिव, तो 1 पाई तो भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, -1 पाई +1 पाई दोनों डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, 0 2 पाई -2 पाई इत्थे ब्राइटनैस, इत्थे भी ब्राइटनैस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। इसी तरह 4 तो भी ब्राइटनैस, इधर 4 तो भी ब्राइटनैस, देखो आ ब्राइटनैस आ गई, ये 4 पाई वाला रीजन आ गया, ठीक है। सो इनू आप फर्दर इस तरह बना सकते हैं, ठीक है, इस तरह करके, ठीक है। सो 4 पाई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस +4 पाई -4 पाई इत्थे आ गया, ठीक है। सो इस तरह ओड इंटैग्रल मल्टीपल ऑफ पाई ते ओड इंटैग्रल मल्टीपल -3 पाई -1 पाई पाई 3 पाई 5 पाई इतने डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आ रहा है, तो इंटैग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई तो अपने को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आ रहा है, देखो इतने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस 0 तो 2 पाई तो 4 पाई तो -2 पाई -4 पाई जोड़ा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ब्राइटनैस आ रही है इन बिटवीन डार्कनैस, जो दोनों का एंपलीट्यूड बराबर है तो अपन क्लीयर कट ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क फ्रिंजेस जड़ियाँ ने नज़र आएंगियां, ठीक है। उधर देखो आ लाइन जी है, आ लाइन अपना ये एंपलीट्यूड तो दर्शा रही है 2 आई नोट, तो आ जोड़ा ये 4 आई नोट ये इंटेंसिटी जो दर्शा रही है, क्योंकि जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होएगा इंटेंसिटी 4 टाइम्स द इंटेंसिटी ऑफ ईदर वेव हो जानी है, ठीक है, जो दोनों का एंपलीट्यूड बराबर है, ठीक है। देखो जो इंटरफेरेंस पैटर्न है इहदे आप जे कहिए कंजरवेशन ऑफ एनर्जी का प्रिंसीपल आप जे ना लेंदे देखिए तो अपन लगता है कि जिथे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है उत्थे एनर्जी जी खत्म हो गई, ठीक है ना। सो जिथे लाइट डिसअपीयर हो रही है तो वो एनर्जी जी एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ठीक है ना। सो इहदे की होंदा है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी हो जाती है, जिथे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होंदा है उत्थे एनर्जी 0 हो जाती है जो अपने को दोनों का एंपलीट्यूड बराबर है, तो जिथे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है उत्थे वो एनर्जी जी है वध के मिलती है अपन, ठीक है। सो जिथे ब्राइटनैस है उत्थे एनर्जी ज़्यादा मिल रही है, जिथे डार्कनैस है उत्थे एनर्जी जी है डिसअपीयर हो रही है। सो इनू कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। सो इट होल्ड्स गुड विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आल्सो, ओके। देखो न्यूमेरिकल है नाल दा द फाइंड द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ 2 points P and Q on a screen in a Young's double slit experiment when waves from S1 and S2 have phase difference of 0 degree and π/2 respectively। और देखो अपने को इंटेंसिटी जी रिजल्टेंट आती है उनकी वैल्यू अपन पता है IA + IB + 2IA IB cos phi, ठीक है। सो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जी है वो इत्थे स्केयर रूट आ जाता है, ठीक है, ये वैल्यू है। हुण देखो जो फाई की वैल्यू 0 डिग्री है तो उदों आप लिख देंगे IR1, ठीक है, तो वो की बन जाएगी IA + IB + 2 टाइम्स IA IB cos 0 1 हो जाएगा,
ठीक है ना। cos 0 लिखांगे इतने 1 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सो ये वैल्यू इन्नी अपने को होगी। हुण फाई इक्वल टू पाई बाय 2, सो cos पाई बाय 2 0 होंदा है, cos पाई बाय 2 0 हो जाएगा, तो अपने को आ फैक्टर जो खत्म हो जाएगा। उस केस च आप IR2 लिख दें, उनकी वैल्यू देखो कितनी बन जाएगी, IA प्लस IB प्लस आ जोड़ा पाई बाय 2 cos पाई बाय 2 0 हो जाएगा, आ फैक्टर खत्म हो जाएगा। सो इनू आप लिखने की लोड़ नहीं। हुण इन्होंने रेशो बारे गल की है, सो इंटेंसिटी की रेशो आप कर दीए IR1 ओवर IR2, उनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, IA प्लस IB प्लस 2 स्क्वायर रूट IA IB डिवाइड बाय IA प्लस IB, ठीक है। हुण देखो आप जो गल की भी एंपलीट्यूड बराबर है, ठीक है ना, जो एंपलीट्यूड्स बराबर है इंटेंसिटीज भी बराबर होंगी। इंटेंसिटीज IA इक्वल टू IB इक्वल टू I0 मान लो, ठीक है। तो उस केस दे विच रेशो की आएगी, IR1 डिवाइड बाय IR2 इज इक्वल टू I0 प्लस I0, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स इत्थे I0 लिख लांगे, सो डिवाइड बाय I0 प्लस I0, ठीक है। सो ये वैल्यू कितनी होगी, इतने देखो ये I0 आ जाएगा पूरा, सो ये 2I0 बन जाएगा, आ भी 2I0 प्लस 2I0 बन गया, ठीक है, डिवाइड बाय 2I0, सो ये आ गया 4I0 डिवाइड बाय 2I0, सो ये 2 आ गई। सो इसका मतलब IR1 डिवाइड बाय IR2 इज इक्वल टू 2, और आप क्या देंगे IR इज इक्वल टू ट्वाइस IR2। सो इंटेंसिटी ऑफ जो 0 डिग्री है फेस डिफरेंस, वो उनके नालों ट्वाइस आ जाएगी जो पाई बाय 2 है, सो 2 टाइम्स IR2, ठीक है। सो ये रिजल्टेंट अपने को आ गया कि इंटेंसिटी इस कंडीशन की इंटेंसिटी इनके नालों ट्वाइस आ जाएगी, ठीक है, क्लीयर है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, 2 waves having intensity in the ratio 25:4 produce interference। सो 2 waves ने जड़ियाँ जिन्हों की इंटेंसिटी 25/4 की रेशो च है, वो इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस कर रही हैं। कैलकुलेट द रेशो ऑफ मैक्सिमम टू द मिनिमम इंटेंसिटी, ठीक है। सो रेशो ऑफ मैक्सिमम टू द मिनिमम इंटेंसिटी आप कैलकुलेट करनी है। सो इत्थे देखो की है अपने को दिता है IA डिवाइड बाय IB इज इक्वल टू 25:4, ठीक है। सो इत्थे IA की वैल्यू कितनी बन गई, 25/4 IB, स्केयर रूट कर लिए दोनों पासे। सो स्केयर रूट IA जोड़ा है उनकी वैल्यू कितनी आ गई, स्केयर रूट 25/4 IB, ठीक है। 25 का स्केयर रूट 5 आ जाएगा, तो 4 का 2 आ जाएगा, ठीक है ना। सो 5/2 स्केयर रूट IB बन गया है, ठीक है। सो स्केयर रूट IA ये क्यों किया आप देखते हैं हमें। सो देखो अपन पता है कि जिहड़ा मैक्सिमम इंटेंसिटी होंदी है IA प्लस IB, ठीक है, इहदा स्केयर होंदा है, ठीक है ना। तो जिहड़ी मिनिमम इंटेंसिटी होंदी है I मिनिमम, वो स्केयर रूट IA माइनस स्केयर रूट IB इनका स्केयर होंदा है, ठीक है। सो आप इनू डिवाइड कर दिए, सो अपने को कैलकुलेट द रेशो ऑफ मैक्सिमम टू द मिनिमम इंटेंसिटी आप कैलकुलेट करनी है, तो इनू आप डिवाइड कर दिए तो अपने को देखो I मैक्सिमम टू I मिनिमम वो की बन जाएगा स्केयर रूट IA प्लस स्केयर रूट IB इनका स्केयर डिवाइड बाय स्केयर रूट IA
माइनस स्केयर रूट आई बी इन द स्केयर। ठीक है, हुण आपां जिहड़ा स्केयर रूट आई ए दी वैल्यू 5/2 स्केयर रूट आई बी पुट कर दिंदे आ। आई मैक्सिमम ओवर आई मिनीमम ये आपां कैलकुलेट करनी है। इहदी थां ते आपां 5/2 स्केयर रूट आई बी पुट करता प्लस स्केयर रूट आई बी। ठीक है, इनका स्केयर हो गया ऊपर डिवाइड बाय इनकी थां ते 5/2 आई बी स्केयर रूट माइनस स्केयर रूट आई बी, इनका भी स्केयर हो गया। हुण देखो ये 5/2 मतलब 2.5 प्लस 1 3.5 हो जाएगा, 3.5 मतलब 7/2 हो जाएगा। तो 7/2 स्केयर रूट आई बी बन गया। ठीक है, 2 एलसीएम ले लो, एक ही गल है, 2 एलसीएम ले लोगे 5 + 2 7/2 आई बी इनका स्केयर बन गया ऊपर। ओवन डिनोमीनेटर 2 5/2 मतलब 2.5 माइनस 1 ये आ जाएगा 1.5 मतलब 3/2 आ जाएगा, 3/2 स्केयर रूट आई बी। ठीक है, इनका स्केयर हो जाएगा सारे का। सो हम देखो इनू आप खोल लिए स्केयर नू, ये आ गया 49/4 आई बी बन गया। ठीक है ना, जो स्केयर तो ये आ गया 9/4 नाल आई बी बन गया। आई बी कैंसल हो गया, बटा 4 भी कैंसल हो गया, तो ये आ गया 49/9। ठीक है, सो 49:9 की रेशो के मैक्सिमम टू द मिनिमम इंटेंसिटी जी है होएगी। ओके।